الحمد لله رب العالمين الملك الحق المبين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المجتهدين والمقلدين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم يظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. نبی پاک صاحب الاولاق احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جو 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جو 100 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم۔ ماشاءاللہ عبد القدیر بھائی اور ان کے ساتھ ان کے دیگر بھی کزن بھائی مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب ہوئی۔ اب مجھے سمجھ نہیں پڑ رہا کہ ان کو مبارکباد دوں کہ ان کو تعزیت کروں کہ مدینہ چھوٹ گیا ہے، کہ مدینہ چھوٹ گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ تمہارے لیے بہتر ہے، تو بہتر چیز چھوٹ جانے پر تو غم ہوتا ہے، مدینہ بہتر ہے۔ اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یا قافلتی زیدی اجلک رحمے بر حسرت تشنہ لبک، مورا جیرا لرجے دھرک درک طیبہ سے ابھی نہ سنا جانا۔ فرمایا قافلے اپنی ٹھہرنے کی مدت کو بڑھا دے، یا قافلتی اے میرے قافلے زیدی اجلک اپنی مدت کو بڑھا، رحمے بر حسرت تشنہ لبک میرے پیاسے حسرت برے لبوں پر رحم کر، مورا جیرا لرجے درک درک طیبہ سے ابھی نہ سنا جانا۔ یہ جو طیبہ سے لوٹنے کی آواز ہے نا، یہ میرے دل سے میرا دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، میری جان نکلنا شروع ہو جاتی ہے کہ جب یہ قافلے کی آواز چلتی ہے کہ واپسی کا وقت ہو گیا ہے۔ اے قافلے اپنی قیام کی مدت کو بڑھا دے۔ طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے ایسا لگے کہ روح بدن سے گزر گئی، روح بدن سے نکل گئی۔ ایسا لگتا ہے جیسے چھوٹے شیر خوار بچے کو ماں کی گود سے کھینچ لیا ہے۔ مدینہ سے لوٹنا بڑا مشکل ہے۔ ایک ہوتا ہے شوق، ایک ہوتا ہے اشتیاق۔ مدینے جانے کا شوق ہوتا ہے کہ آدمی ان فضاؤں کے اندر سانس لے، ان رحمت بری ساعتوں کے اندر اپنا وقت گزارے، لیکن جب وہاں سے پلٹتا ہے اور واپس آنے کا جو تڑپ دل میں پیدا ہوتی ہے اس کو اشتیاق کہتے ہیں۔ ایک ہے شوق مدینہ، ایک ہے اشتیاق مدینہ۔ اللہ تعالی ہمیں دونوں نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ مدینے کا شوق یہ صرف انسانوں کے اندر نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کے اندر بھی رکھا ہے۔
सरकार से मोहब्बत तो बेजान तने भी करते हैं। मौलाना सरदार अहमद कादरी साहब मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह मदीना शरीफ में थे। तो एक शख्स आपकी बारगाह के अंदर आया और रो रहा था, आंखों से आंसू टपक रहे थे। पूछा क्या हुआ? कहा कुछ ना पूछिए, मैं कल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस के पास था, वहां पर एक बिल्ली थी, मुझे बड़ी खूबसूरत लगी। मैंने नियत की कि मैं इसको उठा लूँगा और मैं इसको साथ पाकिस्तान लेकर जाऊँगा और अपने साथ ले जाऊँगा। लेकिन जब मैं घर गया और मैं सोया, मेरी ज़ाहरी आंखें बंद हुई, दिल की आंखें खुल गई। जैसे मेरी दिल की आंखें खुली, मैंने देखा सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरमाए, वो बिल्ली सरकार की बारगाह में शिकायत कर रही है, या रसूलल्लाह ये मुझे मदीने से ले जाना चाहता है, मैं मदीना नहीं छोड़ना चाहती। सरकार की मोहब्बत वो है कि अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ के जानवरों में भी मदीने से मोहब्बत रखी है। हज़रत मुहद्दिस अलीपुरी पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह मदीना शरीफ का अदब क्या खूब अंदाज से करते थे, अल्लाह अकबर। एक मरतबा सफ़र मदीना में थे, मदीना तोयबा में हाज़री थी, आपके कुछ मुरीदीन भी साथ थे। गलती से मदीना शरीफ के एक सग, इसको हम अपनी ज़बान में कुत्ता भी बोलते हैं, उसने कोई चीज़ मार दी और वो दर्द से चिल्लाया और वहाँ से भाग खड़ा हुआ। हज़रत मुहद्दिस अलीपुरी पीर जमात अली शाह साहब को जब ये पता चला कि मेरे मुरीद ने ये जसारत की है कि मदीने के कुत्ते को तकलीफ पहुँचाई है, अल्लाह अकबर, तड़प गए और तलाश करने का हुक्म दिया। जब मदीने के उस सग को तलाश किया गया तो उसकी नाज बर्दारी इस तरह की कि भुना हुआ गोश्त पेश किया, दूध पेश किया, और हज़रत मुहद्दिस अलीपुरी वहाँ बैठ गए और उससे माफ़ी मांगने लगे, अह मदीने के सग मुझे माफ़ कर दे, मेरे एक मुरीद ने तुझे तकलीफ़ पहुँचा दी है, मेरी सरकार की बारगाह में शिकायत न कर देना। मोहब्बत करने वाले तो इस अंदाज से भी मोहब्बत करते हैं, अल्लाह अकबर। सईदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम इश्क व मोहब्बत आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह जब मदीना तोयबा दूसरी बार हाजिर हुए हज के लिए, हज किया, और आपको पता है उस वक्त काफ़िले जाते थे, कोई ट्रांसपोर्ट का इस तरह का अंदाज नहीं था कि गाड़ियाँ वगैरह हो। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह हज किया और हज के बाद अब सरकार आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर हाज़िरी थी। बीमारी ने तूल पकड़ा और बीमारी तवील हुई, बुखार आपका ज़्यादा हो गया और कमज़ोरी जिस्म पर छा गई। अहबाब ने मना किया कि आप बीमार हैं, बुखार भी तवील हो गया है, मदीने का सफ़र ना कीजिए। आपने फरमाया कि उस राह में मौत आ जाए, ये बेहतर है कि मैं मदीने ना जाऊं। ये नहीं हो सकता कि मैं मदीने ना जाऊं, बल्कि सच पूछो काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा। पूछा सा हमसे किसने, पूछा था हमसे जिसने के नुहज़त किधर की है। उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, असले मुराद हाज़री तो उस पाक दर की है। फरमाया सच पूछो तो दिल की कैफियत ये है कि जब मैं पहले हज करने आया था तब भी हज का कसद नहीं, असल नीयत मेरी मदीना हाज़िरी की थी, और अब जब दूसरी बार भी आया हूँ तो असल मकसद मेरा हज नहीं था, बल्कि अक्सर मकसूद तो ये था कि सरकार की बारगाह में हाज़िरी हो जाए। फरमाया वहाँ ज़रूर जाऊँगा, और सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसी बीमारी के अंदर मदीना तैयबा का सफ़र किया। अल्लाह अकबर। आला फरमाते हैं हमको तो अपने साया में आराम ही से लाए, लुटते हैं मारे जाते हैं यूं ही सुना कहे। हमको तो अपने साया में आराम ही से लाए, हीले बहाने वालों को तो राह डर की है। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसी बीमारी में सफ़र किया, और सफ़र करके जब बारगाह रिसालत में इस शौक़ के साथ हाजिर होते हैं, उसी सफ़र में
सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह को ज़ाहरी आँखों से जागते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हो जाता है। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाएं क्यों, दिल को जो अकल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों, और रुखसत काफिला का शोर गश से हमें उठाए क्यों, सोते हैं उनके साए में कोई हमें उठाए क्यों, उनके साए में। और देख के हजरत गनी फैल पड़े फकीर भी, छाई है अब तो छावनी, हशर ही आना जाए क्यों। आला हज़रत फरमाते हैं, रसूलुल्लाह का जूदो सखा देखकर अब फकीर फैल पड़े हैं, यहाँ छावनियाँ डालनी है। हुजूर की बारगाह में बैठ गए हैं, या रसूलुल्लाह अब क़यामत ही आए तो आए, आपकी बारगाह से अब हम अता लिए बगैर जाएंगे नहीं। देख के हजरत गनी फैल पड़े फकीर भी, छाई है अब तो छावनी, हशर ही आना जाए क्यों। अल्लाहु अकबर। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का वो सफ़र, वो अंदाज़, अल्लाहु अकबर। इमाम अहले सुन्नत अल्लाह ताला ने पूरा रिसाला लिखा इस पर, अनवारुल बशारा, उसमें मदीना तोय्यबा की हाज़री के अंदाज़ लिखे, अहादीस मुबारका लिखी। सरकार फरमाते, मन हज्जा फलम यज़ुरनी फ़क़त जफ़ानी, जिसने हज किया और वो मेरी ज़ियारत के लिए मदीना ना आया, उसने मेरे साथ जफ़ा किया, मेरे साथ जुल्म किया। और फरमाया, जो मेरी कब्र की ज़ियारत कर ले, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, और जो मेरी कब्र की ज़ियारत कर लेगा मेरी शफाअत उस पर वाजिब हो जाएगी। फरमाया कि मेरे विसाल के बाद जो शख्स मदीने आया और मदीने में आया और मेरी कब्र की ज़ियारत की, क़यामत वाले दिन मैं उसकी शफाअत करूँगा। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से जिससे हो सके वो मदीने में मरे, कि जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूँगा। हज़रत मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह मौलाना सरदार अहमद कादरी, आपको जब ये बात याद आई ना कि सरकार ने फरमाया तुम में से जिससे हो सके वो मदीने में मरे, कि जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूँगा। और अल्लाहु अकबर। मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह बज़ाहिरी तौर पर ये नसीब न हुआ कि मदीना तोय्यबा में अजल आती, आपने अपने कुछ नाखून मुबारक काटे, कुछ बाल मुबारक उतारे और उतार के मदीना तोय्यबा की मट्टी के अंदर दफना दिए। अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये तो तौफीक ना मिल सकी कि मैं मदीने में दफन होता, लेकिन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने जिस्म का कुछ हिस्सा मैं मदीने की मट्टी में दफना के जा रहा हूँ, ताकि जब क़यामत वाले दिन अहले मदीना की आप शफाअत करें तो या रसूलल्लाह मुझे भी उसमें शामिल फरमा लें। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तबारक व तआला मदीना शरीफ की सबको हाज़री अता फ़रमाए, हमें शौक़ मदीना भी अता फ़रमाए, इश्तियाक़ मदीना भी अता फ़रमाए। ये ज़ौक़ बरी हाज़री अल्लाह तबारक व तआला सबको नसीब फ़रमाए। अल्लाहु अकबर। तो आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला ने लिखा है कि ये जो काबे का अपने इश्क बड़े अंदाज में, काबे का जो गुलाफ है, काबे का जो गुलाफ है ये सियाह क्यों है और गुंबद खज़रा का रंग सब्ज़ क्यों है। फरमाया इसलिए कि काबा जो है वो हुजूर की जुदाई से सियाह हो गया, और गुंबद खज़रा का रंग सब्ज़ इसलिए है कि तो गुंबद खज़रा को सरकार की सोहबत हासिल है, इसलिए वो खिला हुआ है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला हमें कुर्ब मदीना नसीब फरमाए, और आशिक मदीना अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी साहब दामद बरकातुहु आलिया कुर्बान जाएँ आप पर, जिन्होंने बच्चे बच्चे के दिल में इश्क मदीना डाल दिया, सोज़े मदीना डाल दी हैं, आदाब मदीना कि मदीना शरीफ जाना कैसे है, हाज़री कैसे करनी है, और वहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में किस अंदाज से हाज़री होना है, अदब सिखा दिए हैं। तो अदब जो है वो अदब वालों में रह कर आता है। आप भी अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहु आलिया के दामन के साथ वाबस्ता भी हो जाएं, और मदनी चैनल भी देखा करें, मदनी मुज़ाकरा भी देखें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ दिल में इश्क़ रसूल भी बढ़ेगा। अभी 21 सितंबर बरोज़ इतवार बाद नमाज इशा महफ़िल बगदाद है,
کہ عاشقان رسول جو ہیں وہ سفر بغداد کرتے ہیں، پھر کربلا شریف بھی جاتے ہیں، نجف اشرف بھی حاضری دیتے ہیں، تو وہاں پر کیسے حاضری دینی چاہیے، کیا انداز ہونا چاہیے، کیا ادب ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ العزیز 21 سپتمبر بروز اتوار بعد نماز عشاء مدنی چینل پر لائیو یہ محفل دکھائی جائے گی، اور انشاءاللہ فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن میں بھی عشاء کی نماز کے بعد اس کو اجتماعی طور پر دیکھنے کا اہتمام ہوگا. تو آپ سب کو دعوت ہے، آپ وہاں پر بھی ضرور تشریف لائیں اور اس محفل بغداد میں شرکت کر کے اپنے دل میں سرکار غوث پاک کی محبت بھی بڑھائیں، اہل بیت کی محبت بھی بڑھائیں اور سرکار کا عشق بھی بڑھائیں. اللہ پاک سے دعائیں ہماری حاضری قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.